So welcome again. Here is Professor Rameshwar Gagrani. Guys, we are learning chemistry. This is our online portal. We have started for those candidates, those aspirants who are now in these days, they are supposed to be feel very boring in this lockdown period. And therefore, it is necessary to engage you all to prepare for the world's most prestigious exam, medical as well as engineering entrance exams. Let us have it. आप यहाँ ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूँ. This is metal sodium. Its atomic number is 11. We have this electronic configuration of metal sodium 281. This is first shell. This is second shell. This one is third shell. In first shell there are 2 electrons. In second shell there are 8 electrons. In third shell there is 1 electron. Now, as I told you, just make the value of 1 electron equal to 1 lakh rupees. इसका ध्यान रहे. ये इसलिए ये समझाने के लिए मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूं. अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं मार्केट में डिमांड करूं कि मुझे 7 लाख रुपए दो, तो लोग फोन लेना बंद कर देंगे. आप समझ रहे हैं? मेरी बात ठीक से समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि सोडियम को 7 लाख रुपीस की आवश्यकता है टू कंप्लीट 8 लाख रुपीस. सोडियम needs 7 electron in its outermost shell. If I consider 1 electron is equal to 1 lakh rupee, nobody will give me 7 lakh rupees to complete 8 lakh rupees. Therefore, sodium is mature enough to understand all these things. Sodium ये समझ के चल रहा है. What is the possibility? The best possibility to the metals is what? To lose the electrons. Metal में एक टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, because the last second shell of sodium is completed. Last second shell के इसमें सोडियम में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. Sodium is what? Sodium is preferring to lose electron. उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया. देखो, if it loses this 1 electron, loss of 1 electron, मैंने मेंशन किया 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखा है 1 लिखा है. देखो यहाँ loss of 1 electron, this is important, result into the 2-8 configuration. 281 एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, 28 हो गया. This is now outermost shell. ये सोडियम के अभी outermost shell हो गई, which is completed, and hence sodium is now stable. outermost shell देखो सोडियम की complete हो गई. By losing 1 electron, by giving 1 electron, it loses also shell. यहाँ पर देखो, as soon as it loses electron, loss of shell also takes place. जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं, तो शेल भी लॉस होती है. रिमेंबर योरसेल्फ, लॉस ऑफ शेल आल्सो टेक्स प्लेस. Loss of electron results into loss of shell also takes place. No matter how many electrons lost, whether 1 electron, 2 or 3, कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे, कितने इलेक्ट्रॉन आप गमा दोगे, लेकिन उसके साथ शेल भी गमा दोगे आप. उसके साथ आपको शेल भी देनी पड़ेगी. देखो यहाँ पर शेल चली गई. सोडियम में कितने शेल थी? 1 2 3. एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, शेल चली गई. देखो 28 हो गया. उसके पास 2 ही शेल रही. ठीक से ध्यान से देखो यहाँ पर. Now this sodium, look at this. What happened? This sodium, it has lost electron. How many electrons it has lost? 1 electron. यहाँ पर आप ध्यान दो ये इक्वेशन में. आदित्य, concentrate on this equation. Sodium lost 1 electron. Now it acquires plus 1 charge. It acquires plus 1 charge because it has lost 1 electron. देखो ध्यान से, क्या समझ रहा है आपको या क्या नहीं समझा? सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो राइट साइड में चला गया. ये उसने इलेक्ट्रॉन गमा दिया. फॉरगेट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन. इसका क्या हुआ उसका छोड़ दो. यह इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने दे दिया उसका मत सोचो. फॉरगेट अबाउट दैट. उसने अपनी स्टेबिलिटी मिला ली. देखो भाई, जैसे हम लोग थोड़े बहुत स्वार्थी होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल दिया थोड़े बहुत. हम लोग तो 100% स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश है हम लोग तो सभी, राइट है कि नहीं? तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूं, जैसे हम लोग स्वार्थी है तो वो भी तो स्वार्थी है. हम लोग जैसा स्टेबिलिटी चाहते तो वो भी तो स्टेबिलिटी चाहते हैं. सो व्हेन सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन? फॉरगेट. इसकी बात छोड़ दो. इसका क्या होना है? उसने अपना क्या कर लिया? ऑक्टेट पूरा कर लिया. लुक एट दिस, द ऑक्टेट इज कंप्लीटेड. नाउ व्हाट चेंजेस? क्या हुआ है? चेंज क्या हुआ है? देखो यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281. देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 28. क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसने गमा दिया. ध्यान में आ रहा है क्या आपको सभी को? बिल्कुल मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं. आप बिल्कुल यहां पर ध्यान दो. सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे. ये लिखे मैंने 11 इलेक्ट्रॉन्स 281. 1 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. How it has completed its octet?
when it loses this one electron, it loses also shell. उसने shell भी यहाँ पर देखो, it a loss of shell takes place. वो shell उसकी निकल गई, तो last second electronic configuration उसको already fulfilled है. It is a stable electronic configuration. This is a stable electronic configuration. This is the electronic configuration of neon. This is the electronic configuration of neon. Therefore, आपको यहाँ पर दिख रहा है, therefore neon equal to sodium plus Na plus. इस तरह से लिखोगे 2,8 नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8. देखो आपको समझा के मैंने क्या लिखा है. When sodium loses, what is the purpose of this all interaction? Purpose क्या है? This is according to the octet rule. In accordance of the octet rule proposed by G. N. Lewis, atoms of an element have a tendency to complete its outermost shell either by loss of electron or gain of electron or sharing of electron so as to attain a nearest noble gas electronic configuration. In this case, a very close to the sodium is a neon. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसका नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो नियॉन है. जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 से 28 हो गया. एंड दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन. एंड देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ सोडियम नियॉन कैन बी रिटन लाइक दिस. Neon is equal to Na plus, where the number of electrons in neon is 2,8. Similarly, sodium acquired the nearest noble gas electronic configuration of neon like this 2,8. But now this is in ionic form. Sodium cation. This is in ionic form. Sodium cation. You can write Na plus 1 भी लिख सकते हो आप. समझने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो. Na plus 1 as it has lost 1 electron. देखो किसको नहीं समझा. अब आपके एक दो क्वेश्चन हो तो पूछ दो. मैं आगे जाऊंगा फिर नेगेटिव वैलेंसी की तरफ जाऊंगा या पॉजिटिव वैलेंसी होगी. देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज, मैं लिख रहा हूं यहां पर, therefore valency of sodium is valency of metal sodium that is Na is +1 मेटल की सोडियम की वैलेंसी +1 क्यों है? क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है. और मैंने कल वैलेंसी का डेफिनेशन आपको क्लियर किया था. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय एन एटम, दैट नंबर इज द वैलेंसी. सोडियम हैज गिवन 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज 1. इज इट? ओके. हैव यू एनी डाउट राइट नाउ? आप आपके सवाल पूछ सकते हो. हाँ पूछो. कौन पूछ रहा है पहले नाम? सर अभिषेक पाटिल. हाँ बोलो अभिषेक बेटा. ऐसे केस में अगर दो एटम हो गए तो उनके एटॉमिक नंबर सेम होते क्या? नहीं समझा मुझे. क्या पूछना चाहते हो? नहीं मतलब नियॉन और सोडियम का एटॉमिक नंबर सेम आया ना, इससे सेम नहीं आया. सोडियम ने नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलाया. हमारी जो एटॉमिक, हमारी ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन याद करो. क्या है? atoms of an element have a tendency to complete its outermost shell either by donating electron or gaining electron or sharing electron so as to attain a nearest noble gas electronic configuration and become stable. सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन देके सबसे उसके करीब का जो निष्क्रिय वायु है वो नियॉन है, उसके जैसा उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला लिया और स्टेबल हो गया. ये मैं बता रहा हूं. तो अगर मैं सोडियम आयन को नियॉन से कनेक्ट करूं तो इस तरह से लिखा जाएगा. बट सोडियम इज नॉट बिकम नियॉन. सोडियम नियॉन नहीं हुआ है, इसका ध्यान रहे. दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है. इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आई शो लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. ये मैं आगे सिखाने वाला हूं. निशांत पाटिल, अभिषेक पाटिल, मैं आगे सिखाऊंगा. ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जहां पर दोनों में क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. यहाँ पर सोडियम आयन में 2,8 है, नियॉन में तो 2,8 थे ही पहले से. सो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो गई. यस.
भाई आप लोग पूछते रहो, अभी आप बिल्कुल सवाल पूछो, आप चैटिंग मत करो, आप सवाल पूछो। गेन नहीं कर सकता है सोडियम, गेन नहीं कर सकता है, ध्यान में रखो। सोडियम जो मेटल्स होते हैं, मेटल ऑलवेज टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्यों? ये हम लोग धीरे धीरे देख ही रहे हैं। अभी सोडियम ने तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद किया, ठीक है ना, सोडियम ने तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद किया। क्यों देना पसंद किया? 7 लाख रुपए कौन देगा अभी मार्केट में? कौन ऐसा ब्रिलियंट है कि जिसके पास 1 लाख रुपए और उसको 7 लाख रुपए दे दे? इसीलिए मैंने 1 लाख रुपए का कंपैरिजन किया। मैं अगर 1 रुपए से कंपैरिजन करता तो किसी से आप मान लो 7 रुपए मंगो, किसी से आप 7 रुपीज मंगो तो आपको 20 रुपए देके जाता कोई। मैंने इसीलिए इलेक्ट्रॉन की तुलना 1 लाख रुपए से की। सर फिर आपने करोड़ से क्यों नहीं की? भाई मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि करोड़ से कर दूं, फिलहाल तो लाख से धकाओ। चलो यस बोलो सर सी चैट हाँ, लेट मी सी, देख रहा हूं चैट में क्या लिखा है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड देन व्हाट विल बी द वैलेंसी। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप ऑन द वे है। क्या लिखा है सर? इट मींस दैट व्हेन एन एलिमेंट लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स देन इट विल गेन द पॉजिटिव चार्ज। यस राइट, एंड इफ एन एलिमेंट गेन्स देन इट विल हैव द नेगेटिव चार्ज। राइट है, बिल्कुल सही है। आगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड then what will be the valency of element? It is partial positive, partial negative. This is a part of the remaining this is forthcoming part, we will see it. Sir, if 4 valence electrons रहेंगे तो atom electrons gain करेगा या lose? Good question है, it is coming on the way. When electrons are shared then what will be the valency? सभी के वही क्वेश्चन है। अभी तो हम लोग पॉजिटिव वैलेंसी देख रहे हैं, वो गेन भी कर सकते हैं या लॉस भी कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जी रिक्वायर इज सेम। नहीं, वो गेन भी नहीं करेंगे और लॉस भी नहीं करेंगे, वो शेयरिंग ही करेंगे। ओके, बट डू एलिमेंट्स मिलर स्टेबल हो सकते हैं? अस्मिता अशोक अहिरे, मुझे नहीं समझा क्या लिखा है आपने। अस्मिता अशोक अहिरे, सर 2 एलिमेंट मिळून एक होऊ शकतात का स्टेबल? हो, दोन एलिमेंट मिळून एक होतात आणि ते स्टेबल होतात, परंतु 2 एलिमेंट मिळून म्हणजे दोघींनी याच्यासाठी जवळ नाही यायचं राहत तर दोघींनी मिळून जवळ येऊन स्टेबल व्हायचं असं नाही। ते इंडिपेंडेंटली विचार करतात, इंडिपेंडेंटली विचार करून मग ते त्या स्थितीमध्ये बॉन्ड तयार करतात। तो पार्ट आपला उद्या असणार आहे, टुमारो वी विल सी इट। ओके, अभी चलो मैं और एक एग्जांपल लेता हूं लगे तो। हाँ, यस, valence is the number of electrons present in the outermost shell of an atom. No, this is wrong. जतिन शामनानी, it is wrong answer. क्यों? क्योंकि आपने इसके पहले के मेरे स्टेटमेंट नहीं सुने। फिर जतिन शामनानी, आपने इसके पहले के मैंने 3 दिन से एक ही स्टेटमेंट में वैलेंसी की डेफिनेशन बता रहा हूं। अगर मैं आपके हिसाब से चलूं, जतिन शामनानी, अगर मैं आपके हिसाब से चलूं तो एक एग्जांपल ले लेता हूं। जतिन शामनानी, लुक एट द बोर्ड, में एक एग्जांपल ले रहा हूं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 and 5 इलेक्ट्रॉन से, देखो तो क्या नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो गई? नहीं, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। जतिन शामनानी, आप समझे मैं जो बता रहा हूं? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सर बॉन्ड मध्ये सिंगल बॉन्ड पण असतो ना? हो असतो, बरोबर है सर। 10th में तो ये डेफिनेशन थी। हाँ, 10th में वही डेफिनेशन थी, लेकिन वो डेफिनेशन रॉन्ग है। वो डेफिनेशन। हाँ, हेलो सर। हाँ, यस, हेलो। हाँ, यस, आई एम लिसनिंग। हाँ सर, ते बॉन्ड मध्ये सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पण असतो ना सर? हो, हे सर्व येणार आहे बेटा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन केमिस्ट्री हे मोठा पेपर आहे, सेकंड पेपरच्या नावाने जगात प्रसिद्ध आहे, आणि तो मीच शिकवत असतो तो पेपर थ्रू आउट इयर। सर, हा बोला, मी ऐकतोय, तुम्ही बोलत जा। सर सोडियमचा जो शेवटला इलेक्ट्रॉन आहे तो फ्लोरीन सोबत पण शेअर करू शकतो ना? हो, तो करू शकतो, ज्याच्या बरोबर त्याला वाटलं। शेअरिंग नाही होत, तिथं शेअरिंग होत नाही हा शब्द काढून टाका, कारण मेटल शेअरिंग करत नाही। मेटल काय करतात? मेटल, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स दे टेंड टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स दे टेंड टू गेन द इलेक्ट्रॉन। इसका ध्यान रहे। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देना ही पसंद करते हैं, शेयरिंग का तो उसमें कोई सवाल ही नहीं आता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। क्यों? दैट इज व्हाट, दैट इज देयर लिमिटेशन ऑफ देयर आउटर मोस्ट शेल।
ये उनके आउटर मोस्ट शेल का सारा खेल है। आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन अच्छे हैं तो वो गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन कम है तो वो देना पसंद करेंगे। लेकिन इसमें एक याद रहे, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, जब इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो शेल का लॉस नहीं होता है, शेल इज प्रिजर्व्ड, शेल इज कॉन्जर्व्ड, शेल वहां पर नहीं लूज होती है। ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रॉन जब लिए जाते हैं, मैं कल वो लेने वाला हूं, कल बहुत सिस्टमेटिकली सारी चीजें मैं रिपीट भी करूंगा और लेने वाला भी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हाँ यस, हेलो सर, मेटल सिर्फ एक्सेप्ट ही करते हैं क्या? मुझे पहले सिर्फ आप नाम बताते जाओ, मेरे कैसे नाम बताओगे तो मुझे समझेगा। प्रांजलि। हाँ बोलो प्रांजलि। यस, मेटल सिर्फ डोनेट ही करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे कुछ एक्सेप्शन केस नहीं होते? होते हैं, अभी उसमें हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन जहां तक है तो मेटल टेंड्स टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर दिस इज अ प्रोमिनेंट स्टेटमेंट। हा हॅलो सर. यस यस, आणि ते हायड्रोजन वगैरे त्याच्यात डॉट स्ट्रक्चर पण असतं का? हायड्रोजनचं काय म्हणताय? त्याच्यात डॉट स्ट्रक्चर म्हणून केलं जातं ना? हो हो आहेत ना, डॉट अँड लाईन स्ट्रक्चर वगैरे आहेत, पण ते आता अजून आपल्याला अभ्यासात, म्हणजे ते आपल्या पुढच्या येणाऱ्या काळात येणार आहेत ते सर्व। लाईन अँड डॉट स्ट्रक्चर आहे, मग इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आहे, वेज फॉर्म्युला आहेत, याला तर खूप वेळ लागेल बेटा, अजून तर तो रेग्युलर क्लासरूमचा पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ रेगुलर क्लासरूम कोर्स। यस, या फिर Okay, आने वाले okay. समय में देखेंगे हम लोग, आने वाले समय में देखेंगे ना एक एक चीजें। मेटल का ध्यान रहे हमेशा, हर्षिता मेटल है या साक्षी है, प्रांजलि है, जो भी सवाल पूछ रहे, मेटल जहां तक अभी तक स्टडी है तो मेटल ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। क्यों? उनकी अपनी ऑक्टेट रूल, उनकी अपनी आउटरमोस्ट शेल या पेनल्टीमेट शेल की कंडीशन है। क्यों? क्योंकि वो क्यों ऐसा करते हैं? उनको स्टेबिलिटी मिला नहीं है ना। मुझे 7 लाख रुपए कोई देने वाला नहीं है तो मैंने क्या करा, मैंने 1 लाख रुपए डोनेट कर दिए, कम से कम मैं मेरा टेंशन मैंने जीरो कर लिया फिर, कि भाई 7 लाख तो कोई देना नहीं, मैं 50 जगह पर घूमू, कोई तो देना नहीं है, तो मैंने क्या करा, चलो 1 लाख रुपए बांट दो, तो लोगों में क्रेडिट भी बन गया, स्टेबिलिटी भी होंगे। इज इट? क्रेडिट भी तो बन गया मेरा। मैंने किसके जैसा नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिला है, मैंने नियॉन जैसा मिला है, और नियॉन जैसा स्टेबल है, वैसे मैं भी स्टेबल हो गया। कम से कम मुझे शांति तो मिल गई, नहीं तो 1 लाख रुपए के लिए मेरे पास क्या प्रॉब्लम था, अरे 7 लाख रुपए कहां से मिलेंगे, 7 लाख रुपए कहां से मिलेंगे, उससे तो 1 लाख रुपए ही छोड़ दिए मैंने। सो व्हाट इट मीन्स, ये चीजें ध्यान में रखो। सोडियम इट हैज इंट्रोस्पेक्टेड इटसेल्फ। सोडियम, अगर मैं खुद सोडियम हूं तो मैंने सोचा कि चलो 1 लाख रुपए में 1 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देता हूं तो मेरे लास्ट सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी। इफ आई लूज 1 इलेक्ट्रॉन, द लास्ट सेकंड शेल it has 8 electrons, so when I lose this 1 electron or 2 electrons or 3, depend करता है, then मतलब if nobody give me electrons and nobody shares, so what is the possibility? I have to donate, I have to lose, so that is only the possibility. Yes, next question. आप सवाल पूछो, सवाल पूछना जरूरी है। मेटल्स कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स? सर सी चैट। नहीं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, शेयरिंग के बहुत नहीं के बराबर चांसेस होते हैं, लेकिन वो अभी इसमें नहीं जाएंगे, वो लिगेंड्स वगैरह पार्ट आएगा उसमें देखेंगे। हाँ नेक्स्ट, आप आपका इंट्रोडक्शन दो मुझे, इंट्रोडक्शन देने सिवाय सवाल मत पूछो। डियर ऑल, आप पूछ सकते हो, इसीलिए मैंने सवाल जवाब इसीलिए रखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप। हाँ यस, पूछो। सर वो जब शेयर करते हैं तब कौन सा चार्ज होता है उन पर? बेटा शेयरिंग जो है ना, शेयरिंग के अलग अलग प्रकार है। जैसे सिमिलर एटम में अगर शेयरिंग की तो इक्वल चार्जेस डेवलप होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, बट दे आर इन पार्शियल सेंस। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, तुमने पूछा तो मैं बता रहा हूं। क्योंकि शेयरिंग में 2 प्रकार है, एक तो पोलर मॉलिक्यूल सब तैयार होते हैं, एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। नॉन पोलर में इक्वल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक्वायर होते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल में एक पूरा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है, एक पूरा निगेटिव चार्ज एक्वायर होता है। तो ये आने वाले समय में हम इस पर बात जरूर करेंगे। कोहेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे तुम लोग, वी विल टॉक अबाउट इट। नोबल एलिमेंट का चार्ज न्यूट्रल होगा ना सर? न्यूट्रल नहीं कहा जाएगा, यू कैन से दैट इट इज अ जीरो ग्रुप एलिमेंट। न्यूट्रल नहीं कहा जाता। नोबल जो एलिमेंट होते हैं उस पर चार्ज लेस होते हैं वो,
न्यूट्रल ऐसा वर्ड नहीं है. They are zero group element. That means they are not exchanging their electrons, neither sharing, and that's why noble elements, their outermost shell is completed NS2 NP6 except ununoctium. जो ऑर्गेनोसन है, ऑर्गेनोसन जिसको कहा गया है 118, जिसका एटॉमिक नंबर है, जिसका नाम है ऑर्गेनोसन, राइट, इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट. एक शास्त्रज्ञ का नाम है, इसने ये आर्टिफिशियल एलिमेंट डेवलप किया जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, उसको कहा गया है उनुनॉक्टियम. उन मतलब 1 होता है, ध्यान में रखो, ये भी मैं सिखा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रहे. यूनी मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और क्वाड मतलब 4. QUAAD. अब मैं लिखता हूं उन ऑक्टियम. तो उन मतलब 1 और ऑक्ट मतलब 8, 118 हो गया. उन कॉडियम 114, उन सेप्टियम 117, उन पेंटियम 115. यूनी मतलब 1, यूनी मतलब 1 होता है, उसका आई निकाल दिया है. उन ऑक्टियम, उन बायम, उन कॉडियम, उन ट्रयम, उन पेंटियम, इस तरह से अलग अलग नाम है. उन सेप्टियम, सेप्ट मतलब 7. पीरियोडिक टेबल में 117 को उन सेप्टियम का है, लेकिन सेप्ट मतलब 7 होता नहीं है, एक्चुअली वो हेप्ट होता है. थोड़ा ध्यान रहे, हेप्ट मतलब 7 होता है, लेकिन यहां पर पीरियोडिक टेबल में सेप्ट यूज किया है. सेप्ट मतलब 7, वहां पर हेप्ट यूज नहीं किया है. हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, लेकिन पीरियोडिक टेबल में सेप्ट यूज किया है. 117 उन सेप्टियम, 118 उन ऑक्टियम. सो उन मतलब 1, यूनिट UNI, यूनि मतलब 1. तो उन आया निकाल दिया. उन 11 ऑक्ट मतलब 8, उन ऑक्टियम 118. इसका भी नया नाम आ गया है ऑर्गेनोसन. ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, हाईली अनस्टेबल है, दो इट बिलोंग्स टू द नोबल एलिमेंट्स, नोबल फैमिली, बट ये काफी विचित्र है. यह हाईली अनस्टेबल है. क्यों अनस्टेबल है? इसके पास, इसका मेरे हिसाब से मास नंबर भी बहुत ज्यादा है, तो इसके पास न्यूट्रॉन की भी तो करीबन 150 के ऊपर इसके पास तो न्यूट्रॉन है. 118 तो उसका एटॉमिक नंबर है और 150 के करीबन न्यूट्रॉन है, ज्यादा है, मतलब मैं एक रफ फिगर बता रहा हूं. तो फिर ये तो एक्सट्रीमली अनस्टेबल है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ पूछो, क्या है? सर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके डुप्लेट फॉर्म नहीं कर सकता है क्या? नहीं अभिषेक पाटिल, ये सवाल तुम्हारा अच्छा है. डुप्लेक्स के लिए लिमिटेशन है. डुप्लेक्स सिर्फ आपको लिथियम, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यहां तक ही डुप्लेट चलते हैं. बाद में तो डुप्लेट वर्किंग नहीं करता है, ध्यान में रखो, क्योंकि उसके अपने लिमिटेशन है. ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन है, वैसे डुप्लेट की भी लिमिटेशन है. ठीक है, डुप्लेट के भी लिमिटेशन है. यस, नेक्स्ट सर ये क्वेश्चन. मेरा सवाल नहीं था. अभिषेक पाटिल का है ना, अभिषेक रविंद्र पाटिल, उसका सवाल है ये. नहीं सर, ये Yes, उल्टा है सर वो. हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पर पढ़ा. अभिषेक रविंद्र पाटिल टू एवरीवन, सर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके डुप्लेट फॉर्म नहीं कर सकता क्या? नहीं करता. सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड? ये तो आने वाले समय में बताऊंगा. आयोनिक कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द cations and anions. Covalent compound is formed by sharing of electrons. Ionic compound is formed by exchange of electrons. तो ये अभी आना बाकी है. जब मैं बॉन्ड फॉर्मेशन करूंगा, कंपाउंड फॉर्मेशन करूंगा, तो बिल्कुल कब बताऊंगा. आयोनिक कंपाउंड्स में आयोनिक लिंकेजेस होती है, वो इन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस में तैयार होता है. कोवैलेंट कंपाउंड में ये अपोजिटली चार्ज्ड आयंस में भी तैयार होता है, लेकिन ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से तैयार होता है. यस, आई शैल टीच एट शारदा आल्सो. मतलब मैं, मेरे साथ 10-15 लोग हैं, सारे आएंगे, सारे अपने हिसाब से सिखाएंगे. सोमेश्वर सर है, रामेश्वर सर है, धनश्री टीचर है, फिर आपके डॉक्टर प्रदीप नाहर है, फिर संदेश नाहर सर है, फिर वसंत पाटिल सर आएंगे, फिर पॉसिबली वाक सर है, यवले सर तो है साथ में. तो ये सारी टीम रहेगी हमारे साथ. Okay, next question. We have a short span of time right now. बेटा आप लोग पूछ सकते हो,
मेरे पास समय है लेकिन आपके पास नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप मुझे सवाल पूछो। मेरे पास अभी 5 मिनट और है। Have you any question? Come up with your difficulties, come up with your doubts. In a regular lecture, whatever we have been learning, if you have doubt concerning with these lectures or any other else, कोई भी हो तो आप मुझे पूछो। केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो मैं श्योर बताऊंगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लोअर द वैलेंसी हायर द रिएक्टिविटी? लोअर द वैलेंसी हायर द रिएक्टिविटी, हाँ ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन इसके थोड़े मायने अलग है निशांत। इसके मायने अलग है, मतलब इसको हमें थोड़ा डीप में स्टडी करना पड़ेगा, डीप में बताना पड़ेगा। ये कंसेप्ट अभी हम लोग यूज में नहीं लाएंगे, ध्यान रहे। मतलब अगर बताना चाहते हो कि लोअर द वैलेंसी हायर द रिएक्टिविटी, इसका मतलब ये भी होता है कि फिर अगर मान लो एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, पोटेशियम की वैलेंसी +1 है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, तो फिर क्या सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल देन मैग्नीशियम देन पोटेशियम? इस तरह से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। नहीं, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके डुप्लेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका हीलियम नहीं है। सोडियम के पास नियॉन है। नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वर्ड मैंने यूज किया है, आपको याद होना चाहिए। मैंने वर्ड यूज किया है साक्षी के, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम के करीब नियॉन है, सोडियम के करीब हीलियम नहीं है। क्योंकि अगर वो डुप्लेट मिलाता है तो इट विल रिलेट टू द हीलियम, क्योंकि हीलियम डुप्लेट है ना, हीलियम डुप्लेट में आता है। और नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सुपरलेटिव यूज की है। जिनको इंग्लिश में पता है इस बात का, सुपरलेटिव यूज कर लिए कि नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इन केस ऑफ सोडियम वो नियॉन आता है और इन केस ऑफ क्लोरीन वो आर्गॉन आता है। लेकिन वही लिथियम की बात करूं तो इन केस ऑफ लिथियम हीलियम आता है, इसलिए वो डुप्लेट पूरा कर लेता है। हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है क्योंकि उसके नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हीलियम का मिला लेता है। ठीक है ना? फिर बोरॉन। यस, बोरॉन। हाँ, तो फिर वो कोशिश करते हैं ऑक्टेट की तरफ, उनके अपने मर्यादा है, उनके अपने लिमिटेशन, इसलिए उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है हीलियम की तरफ। नहीं तो ऑक्टेट इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑक्टेट, बिकॉज इट इज ऑलवेज मेंशन दैट एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि डुप्लेट तो सिर्फ हीलियम है, ऑक्टेट में तो पूरी सीरीज है ना, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो मेजॉरिटी तो ऑक्टेट की है। और ऑक्टेट रूल नाम दिया है ना, डुप्लेट रूल तो नाम दिया ही नहीं। इज इट? डुप्लेट रूल नाम दिया है कि डुप्लेट रूल नहीं है, वो एक्सेप्शन है कि हीलियम जो है, हीलियम बीइंग गैस एंड इट एक्वायर्स, उसका अपना लिमिटेशन क्या है, उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब जब उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहकर भी तो उसके शेल्स बढ़ा नहीं सकता, कहां से बढ़ाएगा? उसके अपने लिमिटेशन है ना, पॉकेट साइज लिमिटेशन उसके। यस, क्या मेरे लेक्चर से आप लोग संतुष्ट है क्या, ये मैं पूछ रहा हूं। पूजा से लेके मैं सभी को पूछ रहा हूं। आपका सीधा मुझे वॉइस चाहिए, आप सिग्नल नहीं, सीधा वॉइस दे। क्या मेरे लेक्चर से आप लोग संतुष्ट होते हो क्या? संतुष्ट हो क्या? सिग्नल मत दो, आप सीधा बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। सर तो जो स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है, जिन स्टूडेंट को नहीं समझ रहा है, Yes, वो मेरे sir. से बात कर सकते हैं ना। ज्यादातर स्टूडेंट की तो आवाज आ रही है कि भाई हम लोग संतुष्ट। यस सर। ओके, थैंक यू सर। कैन वैलेंसी? Yes, sir. ओके, थैंक यू। मैंने सभी का सुन लिया बेटा। आप सभी हमारे लेक्चर से, गगरानी टीम से संतुष्ट है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, परी सोनी ने पूछा है, सर कैन वैलेंसी भी निगेटिव? हाँ, वैलेंसी निगेटिव होती है बेटा, मैंने बोर्ड पे लिखा था। क्लोरीन का बात जब आएगा, नॉन मेटल्स की वैलेंसी निगेटिव होती है, और मेटेलाइड जो होते हैं ये दोनों तरफ बताते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉर्मली, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, आप ऑक्सीजन ले लो, ये नॉन मेटल्स है, इनकी वैलेंसी निगेटिव है। फिर क्यों निगेटिव है हम लोग देखेंगे। अभी तो हमें सोडियम देखना है, पोटेशियम देखना है, कॉपर देखना है, हमें फेरस देखना है, हमें कैल्शियम देखना है, हमें ये सारे अलग अलग वैलेंसी इनकी, किसी की +1 है, किसी की +2 वैलेंसी, किसी की +3 वैलेंसी है। तो मेटल्स हम 25 मेटल लेंगे ना, उनका पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है कि नहीं? यस, नेक्स्ट
मेटेलॉइड जो होते हैं ना बेटा, ये नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। मेटेलॉइड जैसे कार्बन आता है, कार्बन ये मेटेलॉइड की फर्स्ट सीरीज का है, कार्बन सीरीज आ जाती है, कार्बन फैमिली आती है जिसमें सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है। इनके पास ऑप्टिमम इलेक्ट्रॉन नहीं होते 8, लेकिन इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन जरूर होते कि ना इलेक्ट्रॉन ये देना पसंद करते ना लेना, लेकिन ये शेयरिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इज इट? एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो मिला लेंगे कार्बन, लेकिन क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? नहीं डोनेट करेगा। अगर मेरे पास 4 लाख रुपीज है एंड इफ आई नीड अगेन 4 लाख रुपीज, देन इट मे बी पॉसिबल आई विल गेट फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज 4 लाख रुपीज। मेरे पास अगर 4 लाख रुपए है तो मेरे लिए सोचने वाले लोग रहेंगे मार्केट में कि चलो भाई ये पार्टी के पास 4 लाख रुपए तो कुछ तो अच्छा अमाउंट है, चलो 4 लाख की इनकी जरूरत है तो चलो इनको 4 लाख रुपए देते, तो 2-2 मिलके भी दिए जा सकते हैं। कोई 2-2 लाख रुपए देगा, 2 लोग मिलके, कोई 3 आदमी मिलके, कोई 1-2 लाख देगा, कोई 1-1 लाख दे देगा, या फिर 4 लोग मिलेंगे, चारों लोग 1-1 लाख रुपए देके भी 4 लाख पूरे कर सकते हैं। तो ये वेरियस पॉसिबिलिटीज है। ये पॉसिबिलिटीज हम लोग बहुत जल्दी चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं, क्योंकि 4 लाख रुपए की किसी को आवश्यकता है तो अगर मान लो उसने मुझे फोन किया कि सर मुझे 4 लाख रुपए दो, तो मान लो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए है। वो क्या बोलेगा? चलो दे दो मुझे 1 लाख रुपए। तो ऐसे उसको अगर 4 लोग मिल गए तो 4 लाख उसके हो जाते। तो कैसे भी करके उसकी वैलेंसी मैनेज कर लेता है वो, कैसे भी करके उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। So dear all, thank you for your presence. This is Gagrani online portal. Thank you. We will meet tomorrow.